Jai Gurudev students, welcome you all in the business studies class. Students, today we will study the new chapter that is emerging modes of business. इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था बिजनेस सर्विसेज के बारे में. अब हम आपको पढ़ाएंगे न्यू चैप्टर जिसमें कि आपको पढ़ना है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. Business, you all know that business means it is the activities which are generally undertaken for the profit for purpose or for earning money. That is the procurement or the production of goods and services takes place in the business. But business can be done in different ways. Like in previous time also, in ancient times also, the business is carrying on. That time barter system was there. अब सभी लोगों को बार्टर सिस्टम के बारे में पता होगा कि बार्टर सिस्टम मतलब जब पैसे मनी वॉज नॉट इन्वेंटेड, जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब भी लोग एक दूसरे से गुड्स लेकर के एक्सचेंज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करते थे. बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड ही कैन नॉट सेटिस्फाई, ही कैन नॉट फुलफिल ऑल हिज वांट्स हिमसेल्फ. सो ही नीड्स द गुड्स प्रोड्यूस बाय अदर्स ऑल्सो. सो दैट टाइम ऑल्सो द बिजनेस इज कैरिंग ऑन. That means that time also people are using each other's goods by the way of barter system. So barter system means exchanging goods to goods, commodities to commodities. And slowly and gradually when the money was invented, the shape of the business was changed. Now the business is doing on for earning profit or earning money, and there are different modes of doing the business. दैट मीन्स बिजनेस पहले भी होता था, बिजनेस अभी भी होता है, लेकिन बिजनेस करने के तरीके बदलते गए. द मोड्स ऑफ डूइंग द बिजनेस विल बी डिफरेंट. नाउ डेज इन द डिजिटल वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आज हम अपनी दूसरी कंट्रीज़ के साथ अगर हम कंपटीशन करना चाहते हैं, डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं, तो हमें भी एडवांस टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी इन बिजनेस. सो दैट इज़ नोन एज द इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. मीन्स जो बिजनेस के जो डिफरेंट वेज हैं, मोड्स ऑफ बिजनेस हैं. That means nowadays the new type of modes will be coming in. That is known as emerging modes of business. Means business पहले से अब तक जितने भी इसमें चेंजेस आए, बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस कैरी ऑन करने में, बिजनेस प्रोसेस डन में जो चेंजेस आए हैं, दैट इज नोन एज द इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. मीन्स बिजनेस के तरीके धीरे धीरे बदलते गए जैसे जैसे विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक एज, and with the development of electronic media. So every day we have seen that the new inventions came, and we are hearing about the new innovations, new inventions daily, day by day. So in business also the way of doing the business also change. पहले जो बिजनेस होता था और आज के बिजनेस करने के तरीके बिल्कुल एकदम बदल गए हैं. बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द डूइंग ऑफ द बिजनेस. देयर आर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. सो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस में जो चेंजेस आए, राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स टू टुडे, द चेंजेस, वॉट एवर द चेंजेस कमिंग इन द बिजनेस, दैट इज नोन एज द इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. Now we want to do the economic activities, business activities, so that the people will satisfy all their wants. They will be fully satisfied with the goods produced by the production unit, और वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहे, उनको किसी चीज़ की कमी ना रहे. सो दिस इज़ द एम ऑफ डूइंग द बिजनेस. एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू earn more and more profit, and he can earn profit only when he will satisfy the wants of the consumer. He will be satisfied the wants in the economy. So this will be possible with the using of different modes, changing modes of doing the business, emerging modes of business. Now what is emerging modes of business? In order to meet ever-growing competition, quality standards, lower price, faster order processing, and better customer care, there is a need for the business to take benefits of emerging technologies. अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस सिंपली बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग नहीं है. प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस में तभी होगी जब हम कुछ चीज़ों पर ध्यान रखेंगे. जस्ट लाइक एवर इंक्रीजिंग कंपटीशन. आज का जो वर्ल्ड है वो कंपटीशन के एज है. अगर हम कोई चीज़ में पीछे रह जाएंगे तो हम उस कंपटीशन से पीछे जाएंगे और हम कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगे. एंड ऑल्सो वी वांट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, लोअर प्राइस ऑल्सो. हमें अच्छी चीज़ें जो है वो कम प्राइस में चाहिए. एंड फास्टर ऑर्डर प्रोसेसिंग. आजकल जो कस्टमर है जो चीज़ ऑर्डर करना चाहता है, इमीडिएटली ही वांट्स दैट गुड्स. सो फास्टर ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड बेटर कस्टमर केयर, दिस विल ओनली बी पॉसिबल इफ द बिजनेसमैन अडॉप्टेड दीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. अगर बिजनेसमैन ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज जो आई है बिजनेस में,
अगर ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करता है, इन सब चीज़ों से बिजनेस करता है, तो डेफिनेटली ही विल बी इन द कॉम्पिटिशन, he will satisfy the customer, and he will provide the good quality products at the cheap rates, and he will be in the he will be remain in the business world. So for the survival of business, for the progress of the business, there is a need to adopt these emerging modes in the business. Basically ये emerging modes हैं क्या? तो the emerging modes of business will be divided into three categories. That is, first है हमारा digitalization, second है outsourcing, and third है globalization. So what is digitalization? Digitalization means everything will be changed digitally. जो चीज़ें हम पहले फिजिकली देखते थे, फिजिकली पढ़ते थे, अब वो सारी चीज़ें जो है डिजिटल हो गई। डिजिटल जैसे कि आप देखें कि आजकल आप लोग अभी जैसे स्कूल नहीं है, अभी आप लोगों को जो लॉकडाउन चल रहा है, जो कोरोना वायरस की वजह से स्कूल फिजिकली जो स्कूल में जाकर पहले बच्चा पढ़ता था, अब वो स्कूल नहीं पढ़ रहा, लेकिन फिर भी पढ़ाई हो रही है. हाउ ही इज स्टडिंग? ऑनलाइन क्लासेस आर देयर, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज देयर, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल वर्ल्ड इज देयर, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क. डिजिटल मीन्स इट इज बिलोंग्स टू द नेटवर्किंग यूनिट. नेटवर्क जो है दैट मीन्स अब हमें किसी भी चीज़ की फिजिकली ज़रूरत नहीं है. जस्ट लाइक पहले स्टूडेंट्स नोट्स बनाते थे, कॉपीज़ बनाते थे, बुक से लिखते थे. आजकल जो है वो हर चीज़ जो है नोट्स अपनी मोबाइल पे, अपने लैपटॉप में, अपनी आईपैड वगैरह पे स्टोर करके रखते हैं. दैट मीन्स एवरीथिंग नाउ बिकम्स डिजिटल. तो डिजिटलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया है बिजनेस वर्ल्ड में. दैट बिजनेस में जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इम्पॉर्टेंट जो हमारे ऑर्डर्स हैं, जो लिस्ट वगैरह हैं, एवरीथिंग वी हैव मेड डिजिटल इन द कंप्यूटर. और ये सारी चीज़ें जो है आपस में it will be possible to work digitally only because of networking. Definitely इंटरनेट से आप सभी लोग फैमिलियर हैं कि इंटरनेट के थ्रू जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से. डिजिटली यू कैन ट्रांसफ़र योर इन्फॉर्मेशन, यू कैन योर ट्रांसफ़र योर नीड्स, यू ट्रांसफ़र योर व्यूज़, एवरीथिंग नाउ बिकम डिजिटल. सो डिजिटलाइजेशन जो हुआ है बिजनेस में भी हुआ है. बिजनेस भी आजकल जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है. अब अगर हमें कहीं पर भी किसी भी चीज़ को मंगवाना है, कहीं पे कोई चीज़ भेजना है, तो हम डिजिटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हम अपने मोबाइल्स के थ्रू, अपने कंप्यूटर्स के थ्रू, अपने लैपटॉप्स के थ्रू हम नेटवर्किंग एरिया में जितना भी हमारा नेटवर्क है उससे ज्वाइन होकर के हम डिजिटली वर्क कर सकते हैं. सो दैट इज़ डिजिटलाइजेशन. इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में हमारा पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो है डिजिटलाइजेशन. अब जो है वो फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल चीज़ें जो थी अब वो डिजिटल हो गई हैं. दैट मीन्स नाउ एवरीथिंग, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी केप्ट बाय द बिजनेसमैन इन देयर डिजिटल for electronic media like mobiles, like laptops and other electronic instruments. So this is known as digitalization. Next है outsourcing. Outsourcing, when you are taking the services from other person. मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस में जैसे मान लीजिए आपका ऑटोमोबाइल का बिजनेस है. आप अगर कार मैन्युफैक्चर करते हैं, कार मैन्युफैक्चर में आप सारे के सारे पार्ट्स आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट उसका इंजन जो है वो आप नहीं बनाते हैं. बट विदाउट इंजन कार विल नॉट रन ना. तो जो कंपनी का इंजन बनाती है आप उससे इंजन ले सकते हो कि आपके जो इंजन से वो हमारी गाड़ी को सप्लाई कर दीजिए, तो हम अपनी गाड़ी में आपके ही इंजन्स लगाएंगे. तो दैट विल बी प्रोड्यूस बाय सम अदर पर्सन. दैट इज़ आउटसोर्सिंग. अगर हम जो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम वो दूसरे से उसकी सर्विसेज को हायर कर सकते हैं. वो आउटसोर्सिंग कहलाता है. मीन्स टेकिंग द सर्विसेज फ्रॉम अदर्स इन विच यू आर नॉट स्पेशलाइज, इन विच यू आर नॉट बिलोंग्स टू. बिजनेस में भी हमें जब अलग अलग तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हर चीज़ तो हम नहीं बना सकते, हर चीज़ हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हम उस चीज़ को आउटसोर्स कर सकते हैं. इवन वी कैन आउटसोर्स द सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो, एंड इवन गुड्स ऑल्सो एंड सर्विसेज बोथ. एंड इवन वी कैन गिव आर गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज ऑल्सो. आउटसोर्सिंग जो है हम दूसरी कंट्रीज से ले भी सकते हैं प्लस दे भी सकते हैं. इवन नॉट इन अदर कंट्रीज, टू अदर पर्सन, अदर फर्म और अदर इंडस्ट्री और अदर स्टेट. अगर हम उनकी सर्विसेज या गुड्स को हायर कर रहे हैं या उनसे परचेस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग. तो आउटसोर्सिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है बिजनेस वर्ल्ड में, कि जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो कि हम दूसरी चीज़ की हमें ज़रूरत है, तो हम दूसरे से वो चीज़ खरीद सकते हैं और अपने बिजनेस में हम उस चीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग. नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन, अपने स्टूडेंट्स यू हैव हर्ड दैट जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, व्हेन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी केम,
दैट मीन्स LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इंटरेक्टिंग विद द अदर कंट्रीज और द वर्ल्ड. मीन्स जब हमारे देश में पहले हम अपने देश तक ही सीमित थे, हम अपने देश में ही गुड्स प्रोड्यूस करते थे, बट जो चीज़ें हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती थी वो हम दूसरी कंट्री से अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो हमें इट विल बी मोर कॉस्टली. बट धीरे धीरे जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो अब हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ बिजनेस रिलेशंस हम स्टार्ट कर सकते हैं. वी आर हैविंग आर कंपनीज इन अदर कंट्रीज, इवन अदर कंट्रीज आर ऑल्सो स्टार्टिंग देयर एंटरप्राइज इन इंडिया ऑल्सो. सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब दैट इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड. दैट मीन्स we are now global now. Our country is a global country. दैट अब हम किसी भी चीज़ से हम दूसरी कंट्री से कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. वहाँ पर हम अपना कोई भी चीज़ बिजनेस की चीज़ें हम आउटसोर्स कर सकते हैं. हम बिजनेस जैसे जैसे हमारे यहाँ जो चीज़ सरप्लस में प्रोड्यूस हो रही है हम उन चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं. और अगर हमें किसी जो चीज़ हमारे यहाँ गुड्स अवेलेबल नहीं है हम बाहर से इम्पोर्ट भी कर सकते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हैविंग ट्रेडिंग रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. अब हम सिर्फ बिजनेस अपनी कंट्री में नहीं बल्कि हम अदर दूसरी कंट्रीज में भी बिजनेस कर रहे हैं, जिनको को ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है. सो दीज आर द इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. दैट इन इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस वी आर टेकिंग दीज 3 थिंग्स. लाइक डिजिटलाइजेशन हो गया हमारा कम्प्लीटली. अब हमारा जो बिजनेस है वो इंटरनेट के थ्रू, और हर चीज़ जो है वो फिजिकली ना हो करके एवरीथिंग विल बी इन डिजिटल फॉर्म. डिजिटल फॉर्म में आ गई है. आउटसोर्सिंग का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम वो चीज़ की हमें ज़रूरत है या हमें सर्विसेज की ज़रूरत है या गुड्स की ज़रूरत है, तो हम किसी दूसरे पर्सन से उसको हायर कर सकते हैं, उसको परचेस कर सकते हैं. इवन वी कैन आउटसोर्स गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो. एंड ग्लोबलाइजेशन मीन्स नाउ business relation, not trading activities are not related to our own country, but it will be from other countries also. We are having our trading relation with different countries of the world. So emerging modes of business का मतलब है that in business when we are adopting the new technologies, new innovations, and then it will be very helpful for us to do the business properly, smoothly, and also we are creating utilities of our products to the customer. So it is known as emerging modes of business. And in the emerging modes of business, digitalization, outsourcing, and the globalization is very important step in the in this present scenario. That is, these are the emerging modes of business that we are requiring these modes in doing the business electronically or digitally.